ठीक है। और दो चीजें हम लोग ने थोड़ा सा इसको कल देख लिया था। सो कंसीडर दिस एंड डीज। तो ये कुछ डीज हो गए आपके, और ये डीज के बीच में हम लोग पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस को या पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन को यहां रखेंगे, और पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन को यहां रखेंगे, तो इसके ऊपर दो मैग्नेट्स होंगे हमारे। सो दीज आर दिस मैग्नेट्स, और ये मैग्नेट पावरफुल मैग्नेट होनी चाहिए। सो दिस शुड बी अ पावरफुल मैग्नेट्स, एंड दैट मैग्नेट्स इज इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। ये मैग्नेट्स कौन सा होने चाहिए हमारे? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। So these are these electromagnets. This is your north pole and this is your south pole. हाँ, इनके बीच में कौन सी फील्ड प्रोड्यूस होगी? मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? तो यहाँ एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी which is perpendicular to the plane of D's. ये प्लेन परपेंडिकुलर होंगे ये D's के लिए। So this is your D is D1 and this is your D is D2. अब इसके बहुत सारे बेसिक चीजें हम लोग पढ़ेंगे यहाँ। तो सबसे पहले इसका प्रिंसिपल पढ़ा जाएगा। सो प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोट्रॉन, या सबसे पहले तो हम लोग डेफिनेशन बोल सकते हैं इसका, साइक्लोट्रॉन का डेफिनेशन, बाद में प्रिंसिपल देखेंगे। सो व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर द साइक्लोट्रॉन? साइक्लोट्रॉन इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू एक्सेलरेट द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए जो डिवाइस हम लोग यूज करते हैं उसको साइक्लोट्रॉन कहते हैं। और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते कौन से? हमारे अल्फा पार्टिकल्स, प्रोटॉन and deuterons. Clear? With a very high velocity, so it acquire the sufficient amount of energy for the nuclear disintegration. Yeah, otherwise atom smashing experiment. So it's called as a cyclotron. This is a complete definition for the cyclotron. So what is a cyclotron? Cyclotron is a device. ये एक ऐसा डिवाइस होगा, cyclotron is a device which is used for accelerating the positively charged particle. और जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होंगे दैट इज प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल्स, ड्यूटेरॉन, with a very high velocity, so it acquire the sufficient amount of energy for the nuclear disintegration, या otherwise atom smashing experiment is called as the cyclotron. So this is a definition for the cyclotron. Now, if I am talking about the principle of cyclotron, principle definition clear है सभी के लिए? What is cyclotron? Cyclotron is a device which is used to accelerate the positively charged particle like proton, deuteron, alpha particle with a very high velocity so that it can acquire sufficient amount of energy for the nuclear disintegration or atom smashing experiment. So this is a definition for cyclotron. Clear? हाँ। अब प्रिंसिपल समझने से पहले दो चीजें हम लोग यहाँ से समझ लेते हैं। और ये जो डीज होती है, ये डीज हम लोग हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कलेक्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद 10 किलोवोल्ट। सो दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 10 किलोवोल्ट। हैविंग इट्स ओन फ्रीक्वेंसी एंड दैट फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट, याद है, 10 मेगाहर्ट्ज। सो दिस इज योर 10 मेगाहर्ट्ज, दिस इज फ्रीक्वेंसी। So these D's are connected with the electric potential of 10 kilovolts and frequency of 10 megahertz. So now I am talking about the principle of this cyclotron. So what is the principle of cyclotron? Principle क्या होता है? जो positively charged ion होते हैं हमारे यहाँ, so this positively charged ion, ये जो positively charged ion है, so it positively charged ion is performing the circular motion. And this performing a circular motion, so ये जो circular motion perform करेगा उसके लिए टाइम कितना होगा, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, एनर्जी कितनी एक्वायर करेगा, और जितनी भी एनर्जी एक्वायर करेगा, so it is totally used for the nuclear disintegration. And it is also it is for the atom smashing experiment. यही चीज होगी यहाँ पर. So the principle of cyclotron. So what is the principle of cyclotron? The ion which is positively charged particle. यहाँ जो ions है हमारे यहाँ पे जो positively charged particle है, which is moving in a circular, which is moving in this D's, and this D's is connected to the electric potential, and that electric potential of 10 kilovolt and having its own frequency of 10 megahertz. जो यहाँ पॉजिटिवली चार्ज आयंस होंगे, ये पॉजिटिवली चार्ज आयन
it is moves in a circle, yeah, it is performing a circular motion in this these D1 and D2, and this D1 and D2 is connected to the electric potential of 10 kilovolt and having this Ohm's frequency of 10 megahertz. और जो मोशन होगा that is positively charged ion का, so this motion is against the perpendicular to the magnetic field, strong magnetic field, because this is a strong powerful magnets and that magnets is the electromagnets. So this is the principle of साइक्लोट्रॉन. अब प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोट्रॉन होने के बाद में इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं हम लोग. सो व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस साइक्लोट्रॉन? तो कंस्ट्रक्शन बाद में इसका थ्योरी होगा, बाद में इसका वर्किंग होगा, देन इसके लिमिटेशंस एंड देन यूजेस. इतनी सारी चीजें इसमें होती है. ठीक है, पहला हो गया डेफिनेशन, प्रिंसिपल हो गया. अब देखेंगे इसका कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन क्या है? कंस्ट्रक्शन सिंपल है. ये हमारे पास में दो डीज नजर आ रहे हैं. अब ये डीज का स्ट्रक्चर बताना होगा. इट कंसिस्ट ऑफ टू होलो मेटालिक सिलेंडर. ये दो होलो मेटालिक सिलेंडर है, बट इट इज इन द सेम ऑफ सेमी सर्कुलर शेप में है ये. अगर मैं इन दोनों को कंपेयर कनेक्ट कर दूं तो एक सिलेंडर बन जाएगा. ये क्लियर, होलो सिलेंडर बन जाएगा. ठीक है. सो इट कंसिस्ट ऑफ ये दो डीज का कैसे बने हुए हैं? इट कंसिस्ट ऑफ दिस डीज इज कंसिस्ट ऑफ टू होलो सेमी सर्कुलर मेटालिक चेंबर या मेटालिक सिलेंडर बोल लो. These D1 and D2, so it is consist of D. इसको एक को नाम दिया हम लोग D1, दूसरे को नाम दिया हम लोग D2. अब ये D1 and D2, ये तो एक पहला पॉइंट हो गया कंस्ट्रक्शन का. दूसरा का पॉइंट क्या बोलेंगे हम लोग कि this D1 and D2 is connected to the electric potential of 10 kilovolts and having own frequency of 10 megahertz. फ्रीक्वेंसी कितनी है उसकी? 10 megahertz. और इन दोनों को रखा कहाँ है हम लोग ने? इन दोनों को रखा हुआ है इन दोनों के बीच में दो पावरफुल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बीच में रखा हुआ है. सो दिस इज अ पार्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन. सो दिस डीज इज प्लेस इन बिटवीन द टू स्ट्रॉन्ग पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट्स. यहां क्या तीन पॉइंट्स हो गए हमारे. पहला पॉइंट क्या हो गया कि हम लोग ने डीज बता दिया क्या है डीज. क्लियर. सो व्हाट इज द डीज? डीज इज अ सेमी सर्कुलर, इट इज अ होलो सेमी सर्कुलर मेटालिक चेंबर बोलो या अदरवाइज सिलेंडर बोलो. क्लियर. और उसको नाम क्या दिया हम लोग ने? D1 and D2, and this D1 and D2 is called as Ds. क्या कहते हैं इसको हम लोग? Ds. So these are the Ds. ये Ds हो गया, ये पहला पॉइंट. क्लियर. एंड सेकंड पॉइंट, the Ds is connected to the, so these Ds किसको कनेक्ट किया हम लोग ने? This Ds is connected to the electric potential of 10 kilovolt and having its own frequency of 10 megahertz. And this Ds is perpendicular to the strong magnetic field. और यहां मैग्नेटिक फील्ड जो बनती है वो वैल्यूज ध्यान में रखनी है हम लोग को. सो यहां मैग्नेटिक फील्ड बनेगी सो दैट B is equals to this is 15 किलो गॉस. गॉस is the CGS unit of magnetic field, while Tesla is the SI unit of magnetic field. Remember these 2 points. Gauss is a CGS unit of magnetic field, while Tesla is the SI unit of magnetic field. Tesla SI unit of magnetic field. Clear? So जो यहाँ पे हम लोग ने वैल्यू ली है, so this is in the CGS unit. So that is 15,000 Gauss. So this 15,000 Gauss मतलब so this is magnetic field which is produced by this strong electromagnets. That magnetic field is 15 kilo Gauss. 15 kilo Gauss की वो magnetic fields बनेगी. Clear? Now third point, this Ds is placed in between the two strong powerful electromagnets. ये Ds दोनों powerful electromagnets के बीच में हम लोग ने रखे हुए हैं. So these are these electromagnets. हम लोग इसको electromagnets कहेंगे. Electromagnets. अब now last point of this construction. कितने पॉइंट्स हो गए? 3, 4, 14 पॉइंट देखिए. 14 पॉइंट क्या है कि जो आयंस यहां हम लोग बनाते हैं, यहां एक आयंस नहीं, यहां मल्टीपल आयंस बनेंगे, n नंबर ऑफ आयंस बनेंगे ड्यू टू प्रोसेस ऑफ आयनाइजेशन. हाँ, तो जो आयंस यहां बनेंगे तो ये आयंस करेंगे क्या? सो दिस आयंस इज मूव्स इन अ सर्कुलर ट्रैक. ये सारे आयंस क्या होंगे? ये एक मूव्स होंगे एक सर्कुलर ट्रैक में ऐसे. क्लियर. अब इतने चीज का हम लोग टॉप व्यू ले लेते हैं. अब जब इतने चीज का मैं टॉप व्यू लेगा तो ये मेरे पास में डायग्राम कुछ ऐसे बन के आएगी. ध्यान देना सभी लोग इधर.
So this is your D is D1. I am taking the top view of this D1 and D2. ये D1 हो गया आपका and this is your D2. ये गैप होगी D1 और D2 के बीच में, ठीक है। यहां हम लोग ने आयंस बनाया हुआ है, ठीक है। तो जैसे ही आयंस यहां से सर्कुलर ट्रैक परफॉर्म करते हैं या सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हैं या सर्कुलर प्रोसेस को फॉलो करते हैं, सो इट इज मूविंग लाइक दिस। सो दिस इज योर D1 एंड दिस इज योर D2। सो जो आयंस यहां बने हुए, सो दिस आयंस परफॉर्मिंग दिस सर्कुलर ट्रैक, एंड व्हेन इट इज परफॉर्मिंग द सर्कुलर ट्रैक विद इंक्रीजिंग इन द रेडियस, इसका रेडियस इंक्रीज होते हुए जाएगा, और जैसे जैसे इसका रेडियस इंक्रीज होते हुए जाएगा तो एक पर्टिकुलर पॉइंट होगा जहां से इसको निकलने का रास्ता मिलेगा, एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज टारगेट। उसको टारगेट कहेंगे हम लोग। हो सकता है टारगेट हम लोग यहां पर भी ले ले अभी। सो वी टेक द टारगेट। सो दिस इज योर टारगेट पोर्शन। तो इधर भी हमारा एक टारगेट आ जाएगा यहां से, तो यहां से कुछ टारगेट लेंगे हम लोग इसको। व्हाट इज मीनिंग ऑफ टारगेट? कि जो एक्सेलरेटेड पार्टिकल होगा, जो हाई एनर्जी एक्वायर करेगा, वो हाई एनर्जी लेकर के यहां से बाहर निकल जाएगा। क्लियर? सो दीज आर द ऑल अबाउट द कंस्ट्रक्शन। ये हो गया कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हम लोग 4 पॉइंट बताएंगे। पहले डीज के बारे में, क्लियर। दूसरा किसको कनेक्ट किया हुआ है हम लोग ने, हाई वोल्टेज दैट इज 10 किलो वोल्ट एंड फ्रीक्वेंसी अभी 10 मेगाहर्ट्ज, और इसको किसके बीच में रखा हुआ है हम लोग ने, स्ट्रॉन्ग पावरफुल मैग्नेट्स के बीच में रखा हुआ है, ठीक है। और जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, सो दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ दिस पॉजिटिवली चार्ज आयन। These are this construction. Now, अब कंस्ट्रक्शन के बाद में हम लोग जनरल तौर पर लेते हैं थ्योरी, बट यहाँ सॉरी वर्किंग लेते हैं, बट हम लोग यहाँ पहले लेंगे थ्योरी, बाद वर्किंग, ठीक है। थ्योरी में क्या होगा? थ्योरी में होगा कि भैया जितनी एनर्जी एक्वायर करना है, जितनी एनर्जी एक्वायर करना है उसका डेरिवेशन सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले तो अभी अगर मेरे को यहाँ से इसकी इक्वेशन बनानी है, तो इक्वेशन क्या होगी कि ये जो पूरा के पूरे आयंस है विच इज मूविंग इन अ सर्कुलर ट्रैक, जो सर्कुलर ट्रैक में मूव हो रहा है, सो प्रोवाइडेड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड दैट सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय मैग्नेटिक फोर्स। तो यहां आ जाएगा तेरा Fm इज इक्वल टू, इक्वेशन बनेगी हमारी Fm मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू योर सेंट्रीपिटल फोर्स, तो F ऑफ Cp सेंट्रीपिटल फोर्स। So because when the ion performing a circular motion, the necessary centripetal force is provided by what? Magnetic force. So that's why magnetic force is equal to centripetal force, and your magnetic force is QVB, और QVB sin थीटा होता है, परपेंडिकुलर होने की वजह से तो थीटा कितना हो जाएगा 90, so that's why it's a QVB is equal to this is mv square divided by r, क्लियर। और जैसे mv square divided by r आ गया, तो QB is equal to mv divided by r। एक बार यहां से r की इक्वेशन बना लो, एक बार यहां से v की इक्वेशन बना लो, क्लियर। तो r की इक्वेशन में बना लेता हूं, तो इसमें हो जाएगा दिस इज mv divided by QB, और अगर v की इक्वेशन बना ली मैंने तो क्या हो जाएगा r QB divided by m, क्लियर। अब ये r की इक्वेशन इसलिए बनाई है क्योंकि आपको पता चले कि भैया यहाँ पे सर्कुलर ट्रैक के परफॉर्म करने के लिए उसको कितना समय लगेगा। मतलब अगर चार्ज यहाँ से अगर चालू होता है, तो ये जब D2 को कंप्लीट करेगा, जैसे ही ये D2 को कंप्लीट करेगा, तो उसके लिए समय कितना लगेगा। अगेन जैसे D2 के बाहर आ गया, तो अगेन इट इज प्रेजेंट इन बिटवीन दिस D1 एंड D2, इट इज प्रेजेंट इन बिटवीन द गैप्स ऑफ D1 एंड D2, एंड देन सामने पता चलेगा कि ये D1 और D2 का पोलैरिटी रिवर्स होने के बाद में अगेन इट इज ऑलवेज इन अ D1, अगेन फिर से गैप में, फिर से अगेन D2 में, तो ये प्रोसेस कंटिन्यू होते रहेगा। तो इसको समय कितना लगेगा एक सर्कुलर ट्रैक परफॉर्म करने के लिए, सो दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग द इक्वेशन फॉर v हियर, सॉरी r, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि वेलोसिटी होता है तेरा सर्कमफरेंस डिवाइडेड बाय टोटल सर्कमफरेंस डिवाइडेड बाय इस टाइम। तो अगर मैं देखूं v इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, दिस इज 2 pi r डिवाइडेड बाय व्हाट, t, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय या डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, या डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम कर लो इसको। सो इसे 2 pi r डिवाइडेड बाय t होगा, क्योंकि एक सर्कल कंप्लीट होने के लिए 2 pi r ही लगेगा, ठीक है। तो यहां से t इधर, v इधर, ठीक है। तो ये t इज इक्वल टू, देख लो इधर क्या हो जाएगा 2 pi r एंड डिवाइडेड बाय v। अब r की इक्वेशन मैंने यहां ऊपर रखी हुई है, तो r इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, क्लियर। तो यहां हम लोग ये r की वैल्यू यहां रख दूं, तो देख t का वैल्यू क्या बनेगा, सो दिस इज t इज इक्वल टू अगेन दिस इज 2 pi, क्लियर। यहां आ गया तेरा r की जगह mv डिवाइडेड, सो दिस इज mv डिवाइडेड बाय qb, और ये नीचे का v जैसे के वैसे।
ये R का वैल्यू मैंने ये पुट कर दिया पूरा, और ये भी यहाँ ये भी एज इट इज. नाउ दिस V and V get cancelled, so what remains T. So T is equals to, ये आ गया T is equals to 2 pi and this is M divided by QB. क्लियर? ये टोटल टाइम हो गया फॉर द वन सर्कुलर ट्रैक के लिए. बट हाफ सर्कुलर ट्रैक के लिए, क्योंकि वी आर टेकिंग अ D1 and D2 इन अ सेमी सर्कुलर पोर्शन, सेमी सर्कुलर पोर्शन में लिया हुआ है हम लोग ने. दैट्स व्हाई दिस इज T is equals to फॉर वन सेमी सर्कुलर दिस इज pi M divided by QB. ये वैल्यू मैंने कल डायरेक्ट बता दी थी कि ऐसे आती है. सो टाइम यहाँ स्मॉल t ले लेंगे हम लोग, स्मॉल t बिकॉज दिस इज कैपिटल T फॉर द कंप्लीट सर्कल एंड स्मॉल t फॉर द सेमी सर्कुलर, बिकॉज यहाँ पे D1 और D2 अलग अलग सेपरेट हम लोग ने लिए हुए हैं. सो दैट इज स्मॉल t is a time taken by the positively charged ion to complete a semicircular track in D1 simultaneously in D2. D1 और D2 में अलग अलग टाइम्स होगा एंड दिस इज pi m divided by QB बिकॉज टोटल टाइम हम लोग ने लिया हुआ है. दिस इज 2 pi m divided by QB. सो दिस इज अ टाइम. तो ये होगी तेरी टाइम की इक्वेशन. अगर मैं यहां से फ्रीक्वेंसी निकाल दूं, so frequency is reciprocal of the time period, so that is frequency is called as resonance frequency, so that fc is equals to 1 upon t. So and again fc is equals to 1 upon t की जगह मैं डायरेक्ट लिख लूं यहां से, this is qb divided by this is 2 pi m. So this is the frequency of positively charged ion which is moving in a circular track of d1 and d2s. d1 और d2 में जितने भी फ्रीक्वेंसी यहाँ कैलकुलेट हो रही है, so that frequency is equals to qb divided by 2 pi m. और ये इक्वेशन अभी हमारी ये बताती है कि जो FC है इट इज नॉट डिपेंडेंट, इट इज नॉट डिपेंडेंट. किसके ऊपर डिपेंड नहीं है? इट्स नॉट डिपेंड इन, क्या यहाँ पे वेलोसिटी नजर आ रही है? नहीं. सो इट्स नॉट डिपेंड ऑन द वेलोसिटी ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज आयन व्हिच इज एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ साइक्लोट्रॉन. क्लियर? एंड अगेन इट इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन, सो अगेन FC इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन रेडियस. नजर आ रही है आपको? नहीं. सो दीज आर दिस बेसिक्स. तो जो फ्रीक्वेंसी यहां से जो जनरेट हुई है, सो दिस फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी व्हिच इज एक्वायर्ड बाय द पॉजिटिवली चार्ज आयन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ साइक्लोट्रॉन, एंड अगेन द फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड अपॉन द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट व्हिच इज परफॉर्म्ड बाय दिस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सर्कुलर मोशन. अब यहां से मैंने V का इक्वेशन भी बनाया हुआ है, तो यहां से V का इक्वेशन, तो एनर्जी कितनी एक्वायर करेगा दिस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, तो वो निकाल दे. तो काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन बनाएंगे हम लोग यहां से. सो अगेन दिस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू दिस 1/2 mv². दिस इज बेसिक फार्मूला फॉर द काइनेटिक एनर्जी. नाउ अगेन वी हैव द इक्वेशन फॉर V एंड द इक्वेशन फॉर V अगेन दिस इज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 m as it is. Clear? And the value of V is r q b divided by m, so it's r square q square b square divided by m square. So now this kinetic energy becomes, this is 1/2 और यहाँ m और m square कैंसिल हो जाएगा, तो मैं ऐसे लिख लेता हूँ q square r square b square divided by twice m. So this is the kinetic energy acquired by the positively charged ion during the process of cyclotron. अब ये इक्वेशन को मैं चार्ज और वोल्ट के टर्म में ले लेता हूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के टर्म्स में ले लेता हूं. अगेन दिस इज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, यहां से q स्क्वायर है तो q को एक बाहर ले लो, साथ में इसकी q r स्क्वायर b स्क्वायर डिवाइडेड बाय दिस इज ट्वाइस m, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ये वैल्यू किसका बन जाता है? ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. सो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनने के बाद में, सो योर कंप्लीट इक्वेशन बिकम्स फॉर द काइनेटिक एनर्जी. सो दिस इज q and this is v. So where this v is not the velocity, this v is the electric potential which is applied in between this d1 and d2. So this is the theory of this cyclotron. ये theory हो गया cyclotron का. And now working of cyclotron. अब देखते हैं इसका working. So working of cyclotron, working क्या होगा? और working में देखते हैं कि भैया प्रोसेस एक्चुअली हो क्या रही है यहाँ पे. वर्किंग में देखेंगे एक्चुअली साइक्लोट्रॉन में हो क्या रहा है. ये तो हम लोग ने थ्योरी पोर्शन बना दी इसका, ठीक है. अब देखेंगे इसका भैया वर्किंग क्या होगा. वर्किंग में ये होगा कि जो आपने साइक्लोट्रॉन में जितने भी आयंस यहाँ बने हुए हैं, सो दिस प्रोडक्शन ऑफ आयंस इन बिटवीन दिस d1 एंड d2, जो आयंस यहाँ बने हुए हैं जो बिटवीन द d1 एंड d2 है,
ये प्रोडक्शन कैसे हुआ? ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ दिस गैस, ड्यू टू एक्सेलरेशन ऑफ दिस ड्यू टू एक्सेलरेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल्स। ये वर्किंग का आपका पहला पॉइंट होगा कि पहला पॉइंट में क्या एक्सप्लेन करेंगे आप कि जो आपके पॉजिटिवली चार्ज आयंस यहां बने हुए हैं, सो दिस इज प्रोडक्शन ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ आयोनाइजेशन। ये आयोनाइजेशन की वजह से बने हुए हैं। अब आयोनाइजेशन के बाद में बनने के बाद में अब होगा क्या यहां पे? अब होगा सेकंड पॉइंट हम लोग डिस्क्राइब करेंगे कि जैसे ही ये पॉजिटिवली चार्ज आयंस यहां बने हुए हैं, सो दिस D2 इज एक्ट एज अ नेगेटिवली चार्ज बॉडी एंड D1 इज एक्ट एज अ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। सो जैसे ही ये D2 नेगेटिवली चार्ज बॉडी की तरह ऐड करेगा और ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी की तरह ऐड कर जाएगा, ड्यू टू दिस इज अ पॉजिटिवली चार्ज आयन, सो दिस इज मूविंग इन अ सर्कुलर ट्रैक एंड दिस परफॉर्मिंग अ सर्कुलर ट्रैक इन दिस D2। और जैसे ही ये D2 में सर्कुलर ट्रैक परफॉर्म कर दिया, अब सर्कुलर ट्रैक किसकी वजह से परफॉर्म करेगा? यहां वेलोसिटी और डेविएशंस, किसके वेलोसिटी कौन उसको देगा और उसको एंगल से कौन घुमाएगा? वेलोसिटी उसको देगा इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज दिस इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होने के कारण ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइडेड द वेलोसिटी टू दिस पॉजिटिवली चार्ज आयन एंड द मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, सो दैट मैग्नेटिक फील्ड डेविएट्स द आयंस। मैग्नेटिक फील्ड डेविएट करेगी आयंस को। द मीनिंग ऑफ डेविएशन, उसको घुमाने का काम करेगी कौन? मैग्नेटिक फील्ड। मतलब जो चार्ज यहां पे है, ये घुमाने का काम कौन करेगा? मैग्नेटिक फील्ड। और उसको वेलोसिटी कौन प्रोवाइड करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। So electric field provided the speed, या electric field provided the velocity to the positively charged ion, while the magnetic field provided the deviations to this positively charged ion. So due to the combinations of generating the velocity and the deviation, so it performing the circular motion. इलेक्ट्रिक फील्ड आपको वेलोसिटी दे रही है और मैग्नेटिक फील्ड घुमा रही है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन की वजह से जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, ये घूम जा रहे हैं इन D1 एंड D2। That's why it performing the circular motion. Now again it provides, ये घूम जाएगा सर्कुलर मोशन में, तो घूमने के बाद में उसका सेमी सर्कुलर ट्रैक फॉलो होगा। अब जैसे सेमी सर्कुलर ट्रैक फॉलो होगा, तो टाइम कितना लगेगा उसके लिए? तो टाइम की इक्वेशन हम लोग ने पहले निकाल दी है। हाफ सर्कल के लिए, सेमी सर्कल के लिए, इससे पाई m डिवाइडेड बाय q। Again it is emerges in between the gaps of D1 and D2. The meaning of emerges कि यहाँ ये गैप में आ जाएंगे D1 और D2 के बाद, और जैसे ये गैप में आ जाए, so this D2 and D1, इन दोनों की polarity get reversed. And when the polarity get reversed, so this D2 is act as a positively charged body and this D1 is act as a negatively charged body. And when this polarity get reversed, so due to this is D1 is a negatively charged body, so again this positively charged particle is moving in D1. And again it performing again एक सेमी सर्कुलर ट्रैक। तो ये ऐसे कुछ सेमी सर्कुलर ट्रैक फॉलो करते रहेंगे एंड दिस प्रोसेस इज कंटिन्यूअस। ये प्रोसेस कंटिन्यूअस होते जाएगा। अगेन पोलैरिटी अगेन गेट द रिवर्स, अगेन इट इज परफॉर्मिंग अ सर्कुलर ट्रैक इन D2, so while D2 has a negatively charged body and D1 is act as a positively charged body, again it is comes in between, या emerge in between this D1 and D2। फिर से ये D1 और D2 के बीच में आ जाएगा। अगेन दिस पोलैरिटी गेट रिवर्स, अगेन दिस D2 is act as a positively charged body and D1 is act as a negatively charged body. Due to negatively charged body acting of D1, so this positively charged body is attracted toward itself, and when it is attracted toward itself, so it performing again circular track. Again this process is continuous, so due to continuous process happening between this D1 and D2, for the positively charged particles, the velocity of the charged particle increases, and when the velocity is increases, but obviously its kinetic energy increases. It means that as this process goes on, the velocity of the charged particle, positively charged particle, is increases, and due to increasing the positively charged particle, increasing the velocity of positively charged particle, kinetic energy is also increases. So it means that it acquire the maximum amount of kinetic energy, and due to maximum amount of kinetic energy, जब ये जैसे ही maximum amount of kinetic energy acquire कर लेगा, having increasing in the radius, so it moving in from the target and is come out of the disk. And when it is comes out of this, so the energy which is acquired by this particular charged particle, it is utilized for nuclear disintegration. Yeah, it is the energy, yeah, otherwise the particle which is having its
own maximum kinetic energy, जो kinetic energy उसके पास में होगी, so that energy is utilized for bombardment of this particle on the atom, so that's why the atom is dismashed. If this molecule is incident on the nucleus, so it is nuclear disintegration, and this is altogether the phenomenon of cyclotron. ये पूरा का पूरा कंप्लीट प्रिंसिपल बन गया आपका cyclotron. क्लियर? अब ये हो गया डेफिनेशन, देखा हम लोग ने प्रिंसिपल, बाद में कंस्ट्रक्शन, देन वर्क थ्योरी, देन वर्किंग. नाउ लिमिटेशंस. What is the limitation of the cyclotron? There are three limitations of cyclotron. साइक्लोट्रॉन के तीन लिमिटेशंस हैं. अब यहां पे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को हम लोग एक्सेलरेट कर रहे हैं. फर्स्ट लिमिटेशंस फॉर द साइक्लोट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड इन साइक्लोट्रॉन. इलेक्ट्रॉन को हम लोग एक्सेलरेट नहीं कर सकते साइक्लोट्रॉन में, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन के पास में जो मास होता है, सो दैट मास इज comparatively small as compared to the proton. So that's why electron cannot be accelerated in the cyclotron. Second limitation of the cyclotron, neutron again cannot be accelerated in cyclotron. Electron accelerate नहीं हो सकता, neutron accelerate नहीं हो सकता. Then third, the velocity which is acquired by this positively charged proton and the kinetic energy which is acquired by the positively charged proton is totally depending upon the electric potential, the value of electric potential which is applied to these Ds and the value of electromagnets. अगर ये वैल्यू, अगर इसकी दोनों की वैल्यू अगर कम हो जाएगी, क्लियर, तो जो वेलोसिटी है और जो kinetic energy which is acquired by the positively charged proton, again it is limited. So these are the three limitations for this cyclotron. The third limitation को आप दूसरी तरीके से ऐसे भी बोल सकते हो, the velocity which is acquired by the positively charged ion and the kinetic energy which is acquired by the positively charged ion is limited. और ये limited इसलिए होता है because this is the value of this velocity and kinetic energy is totally depending upon the electric potential which is applied to this D1 and D2 and the value of strong, powerful electromagnets. These are these limitations for this cyclotron. Now we are taking uses of cyclotron. What is the uses of cyclotron? Cyclotron कहाँ यूज होता है? साइक्लोट्रॉन सबसे पहले यूज होता है कि जो पार्टिकल्स, जो यहाँ पार्टिकल्स हम लोग यूज कर, जो पार्टिकल्स जो हम लोग ने लिए हुए हैं जहां पे एनर्जी, हाई एनर्जी एक्वायर्ड करके रखा हुआ है, तो ये जो पार्टिकल्स है दूसरे पार्टिकल्स को भी एनर्जी एक्वायर्ड करने के लिए मदद करता है. सो हाई एनर्जेटिक पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन is used to produce another high energetic particles. This is the first use of this cyclotron. जो एनर्जी, जो पार्टिकल यहां बनते हुए हमारे जो पॉजिटिवली चार्ज आयन जो एनर्जी एक्वायर्ड करके रखते हैं, सो अगेन इट यूज्ड टू प्रोड्यूस अनदर हाईली पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल. दिस इज द फर्स्ट यूज ऑफ दिस वन. सेकंड यूज तो हम लोग इसके डेफिनेशन में ही देखते हैं. सेकेंड यूज है इसका, इट इज यूज फॉर द न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन एंड इट इज यूज फॉर द एटम स्मैशिंग एक्सपेरिमेंट. एंड व्हेन इट इज यूज फॉर द न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन, सो इट इज यूज फॉर द स्टडी ऑफ न्यूक्लियर स्ट्रक्चर. न्यूक्लियर स्ट्रक्चर का स्टडी करने के लिए इसका यूज होता है. न्यूक्लियर की रिएक्शन बनाने के लिए या न्यूक्लियर की रिएक्शन स्टडी करने के लिए वी आर यूजिंग अ साइक्लोट्रॉन. सो दिस इज सेकंड यूज ऑफ दिस वन. एंड द थर्ड यूज ऑफ दिस वन, सो इट इज यूज फॉर द डायग्नोसिस, the treatment of diagnosis. So it is a treatment of isotopes. जो भी experimental isotopes होते हैं उसको diagnose करने के लिए या treatment करने के लिए हम लोग cyclotron का use करते हैं. So these are the uses of the cyclotron. And this is the entire concept for the cyclotron. अब यहाँ पे हमारा cyclotron खत्म हो. Definition, principle, construction, theory, उसके बाद में working, limitation and uses. तो ये इतना बड़ा हमारा टॉपिक हो जाता है साइक्लोट्रॉन.
आ गया है?